A very good morning to all my dear students. I am Shalini and today I am going to complete this chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom from your book First Flight. I was not born with the hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast millets under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. मंडेला का कहना है कि मैं आज़ाद होने की इच्छा लेकर के नहीं पैदा हुआ था, बल्कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था और मैं हर तरीके से आज़ाद था। मैं आज़ाद था कि मैं अपने माँ के छोटे सी घर के आसपास दौड़ सकता था, गांव से होके गुजरने वाली नदी के पानी में तैर सकता था, तारों के नीचे रात को मैं अपना खाना बना सकता था और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पे सवारी कर सकता था। जब तक मैंने अपने फादर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, उनकी हर बात मानी और अपने कबीले के रिवाजों को माना, अपने ट्राइब के कस्टम्स को माना, तब तक मैं किसी इंसान या भगवान के किसी भी लॉज से, नियमों से परेशान नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चे थे, हर तरह की आज़ादी थी इनको, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जब ये थोड़े बड़े हुए, तब इन्हें ये एहसास हुआ कि जो मेरे बचपन की आज़ादी थी वो एक इल्यूजन था, वो एक भ्रम था। जब ये एक यंग लड़के थे तब इनको ये पता लगा, ये एहसास हुआ कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी और इन्होंने फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू कर दिया आज़ाद होने के लिए। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में ये केवल अपने लिए आज़ादी चाहते थे, रात को देर तक बाहर रहने की आज़ादी, जो चाहे वो पढ़ने की आज़ादी, जहाँ चाहे वहाँ जाने की आज़ादी। बाद में जब ये जोहान्सबर्ग गए और ये एक यंग लड़के थे, तब इन्होंने एक और आज़ादी चाहिए, खुद की कमाई करने की, अपने अकॉर्डिंग शादी करने की और एक परिवार रखने की। तो ये सारी की सारी आज़ादी इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल रही थी, तो ये परेशान थे। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next one. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all my people were the chains on me.
जब इन्होंने धीरे धीरे देखा कि ना केवल मैं बल्कि मेरे भाई मेरी बहनें भी आज़ाद नहीं थे, उन्होंने ये देखा कि केवल इनकी आज़ादी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था बल्कि इनके जैसे दिखने वाले हर इंसान की आज़ादी को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, छीन ली गई थी। मतलब जितने भी साउथ अफ्रीकन लोग थे जो काले थे उन सब की आज़ादी छीन ली गई थी। ये वो टाइम था जब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और जो इनकी अपनी फ्रीडम की एक हंगर थी, ये खुद आज़ाद होना चाहते थे, अब वो चेंज हो गई थी इनके लोगों की आज़ादी में, साउथ अफ्रीकन लोगों की आज़ादी में की हंगर में चेंज हो गई थी कि सिर्फ मुझे आज़ाद नहीं होना, मुझे पूरे के पूरे कंट्री को आज़ाद कराना है। मेरे लोगों की इज्जत, यानी कि ये कह रहे हैं कि मेरे लोगों की इज्जत से जीने की यही आज़ादी थी जिसने इनके जीवन को बहुत ज़्यादा एक्टिव बना दिया था। और ये एक डरे हुए यंग लड़के से बहुत ही करेजियस मैन में चेंज हो गए थे, साहसी इंसान में बदल गए थे। और कानून का पालन करने वाले लड़के से ये एक रिबेल हो गए थे, विद्रोही हो गए थे। अब तक ये कानून का पालन कर रहे थे लेकिन अब ये उन लोगों के अगेंस्ट थे। और इसी हंगर ने इनको एक प्यार करने वाले हस्बैंड से बदलकर एक बेघर आदमी बना दिया था, जिसका कोई घर नहीं है, जिसकी कोई फैमिली नहीं है, जो पुलिस से बचता हुआ घूमता है। और इसी हंगर ने इनको एक प्यार करने वाले इंसान से एक मॉन्क में, सन्यासी में बदल दिया था। और ये मानते हैं कि मैं और लोगों से ज़्यादा आत्म बलिदानी नहीं हूँ, गुणी नहीं हूँ, लेकिन जब इन्हें ये लगा कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो इनको जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिल रही थी ये उसको भी इंजॉय नहीं कर पाए। इन्हें ये समझ आ गया था कि आज़ादी किसी की भी पर्सनल नहीं होती, सब लोग आज़ाद होते हैं तभी इंसान इंजॉय कर पाता है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. मिस्टर मंडेला कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है। जैसे कि एक गुलाम को आज़ादी चाहिए होती है, ऐसे ही गुलाम बनाने वाले इंसान को भी आज़ादी चाहिए होती है। वो आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीनता है खुद भी नफ़रत का प्रिजनर होता है, नफ़रत का कैदी होता है। वह पूर्वाग्रह और तंग दिमाग की सलाखों के पीछे होता है। अगर मैं आज़ाद नहीं हूं और दूसरे की आज़ादी छीनता हूं तो मैं नफ़रत का शिकार हूं, मीन्स मैं दूसरों से नफ़रत करता हूं। गुलाम बनाने वाला और गुलाम एक समान रूप से ह्यूमैनिटी से डिप्राइव होते हैं। So this is all in this chapter. We'll meet in next session with some new topic. Till then, goodbye and take care.